Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a new chapter which name is Agriculture. Agriculture, before starting the chapter you have to know some important terms like what do you mean by nomadic herding? Nomadic herding means rearing of cattle, sheep, goat, camel, yak, etc. and constantly moving of the herders with their animals to search for food and from place to place. Second is shifting agriculture, that is slash and burn cultivation. It means clearing the forested land by felling trees and burning them and raising crops for 2 or 3 years, then moving to another area when the soil loses its fertility. Next is plantation agriculture. A well-managed system of agriculture on huge farms where a single commercial crop is grown with large amount of labor and capital. Horticulture, also known as market gardening, specializing in the cultivation of fruits. Truck farming, growing of vegetables around the big cities on a large scale and sending them by trucks to consumers. Floriculture, floriculture means growing of flowers for commercial purposes. Next is beverage crops, that means crops like tea, coffee, cocoa, etc. used for making drinks. Next is cash crops, crops which provide cash, for example tea, coffee, tobacco, cotton, sugarcane, etc. Green revolution, the tremendous increase in cereal production resulting from the use of high yield varieties of seeds and with application of fertilizers, insecticides and irrigations, etc. Sericulture, raising of silkworms for production of raw silk. Okay, now let's start the chapter. What do you mean by agriculture? Agriculture खेती बाड़ी. आपको पता है इंडिया जो है वो क्या है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है. ओके, यानी कृषि प्रधान देश है, सबको पता है. Now what do you mean by agriculture? Agriculture is made from two words, that is agri means piece of land and culture, that means cultivation or growing. According to the Longman's dictionary, agriculture is the science of cultivation of crops on a large scale. Agriculture क्या है? Agriculture एक cultivation of crops की एक science है. Okay, it is the science of cultivation of crops on a large scale. But the term agriculture, however, is not restricted by growing of crops only. सिर्फ ऐसा ही नहीं है, agriculture का मतलब क्रॉप ही ग्रो कर सकते हैं. इट मीन्स इट इंक्लूड रियरिंग ऑफ एनिमल्स एज वेल, यानी जो एनिमल्स को पालते हैं वो भी किस में आते हैं? एग्रीकल्चर में ही आते हैं. सम पीपल इंक्लूड फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, सेरिकल्चर एंड पोल्ट्री ऑल्सो इन एग्रीकल्चर. और कुछ लोग एग्रीकल्चर का मतलब इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं. फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, सेरिकल्चर एट्सेट्रा. Agriculture is the oldest and most widely adopted occupation of mankind. Even today, nearly half of the world's population is engaged in the same practice. It is a major occupation in the developing countries of the world. And the beginning of agriculture may be traced back to Neolithic period. Neolithic period means जब न्यू एरा आया था, ठीक है, जब फायर की, व्हील की इन्वेंशन हुई थी, तो नियोलिथिक पीरियड से एग्रीकल्चर की शुरुआत मानी जाती है. लेकिन ऐसा लगता है उससे पहले से ही हम जो हैं एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं. जो फर्स्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन थी दैट अरोज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इन रिवर वैलीज एंड देयर डेल्टाज वर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर ओनली. लेटर एग्रीकल्चर जो है वो धीरे धीरे ड्रायर एरियाज, कोल्डर एरियाज जो थे वहाँ पर भी शुरू हो गई. The world map of the arable land clearly shows that the cultivation of crops is possible only in a limited area. Every crop has certain basic requirements of heat, moisture and nutrient. कुछ
क्रॉप जो होती हैं जिनको पानी कम चाहिए, ठीक है, कुछ क्रॉप होती हैं जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ हॉट सीज़न में ग्रो होती हैं, कुछ कोल्ड सीज़न में ग्रो होती हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन कि कौन से एरिया में कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है, कौन सी एग्रीकल्चर की जा रही है। ओके, नाउ पहले क्या था, जो एंशियंट टाइम में एग्रीकल्चर होती थी वो ज़्यादातर जो लोग थे वो अपने हाथों को यूज़ करते थे। धीरे धीरे ऐसी मशीन, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी स्किल्स लोगों ने डेवलप की कि अब जो है फार्मिंग वो लार्ज स्केल पे मशीनों के थ्रू की जाती है। फाइन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। Based on the agriculture practice, size of the farm, tools and techniques used, crops grown, the types of livestock kept, and the proportion of the output retained by the farmer, agriculture is divided into two main categories. First is subsistence agriculture and second is commercial agriculture. Okay, here is a world map जहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड, यानी कितनी लैंड नोमैडिक हर्डिंग के लिए यूज़ होती है, कितनी लाइफ स्टॉक के लिए, ये आपको की दी हुई है। ठीक है, ये आप रीड करोगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन सी कंट्री में, कौन सी जो लैंड है किस लिए यूज़ की जाती है, कहाँ पर कौन सी एग्रीकल्चर की जाती है। नाउ रीड इट। फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ऐसी एग्रीकल्चर दैट इज मेनली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, यानी आसपास, यानी एक गांव में एग्रीकल्चर की जा रही है सिर्फ उस गांव के लोगों की नीड पूरी करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ग्रोन आर कंज्यूम्ड विद इन द रीजन वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, यानी जहाँ पर वो ग्रो होती है वहीं के लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं, इसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। This practice has mainly three types of traditional agriculture practices. First is nomadic herding, then shifting cultivation and intensive agriculture. Now, first is nomadic herding. Nomadic herding क्या होती है? जैसे this is practiced by people who rear cattle, sheep, goat, camels and yak. ये क्या करते हैं, लोकल वेजिटेशन को यूज़ करते हैं। लोकल वेजिटेशन यानी वहाँ पर जो वेजिटेशन ग्रो होती है तो जो एनिमल रियर करते हैं उनको वहाँ ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं। हर्डर्स जो हैं वो वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते हैं। जब एक जगह का जो फोडर ख़त्म हो जाता है तो इन सर्च ऑफ फोडर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन सहारा, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड नॉर्दर्न यूरेशिया एट्सेट्रा। जब बेडोइन है सऊदी अरेबिया के एंड सहारा के, द किर्गिज ऑफ सेंट्रल एशिया, ये क्या है, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, तो ये क्या करते हैं, नोमैडिक हर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ओके, स्लैश एंड बर्न यानी यूज़ करो और फिर जो रिमेन्स बचते हैं प्लांट के उसको क्या करते हैं, वो बर्न कर देते हैं और उस एरिया को छोड़ के फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे मोस्टली जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। फार्मर एक लैंड को प्रिपेयर करते हैं कल्टीवेशन के लिए, ट्रीज़ को वहाँ से काट देते हैं, बर्न कर देते हैं और उसके बाद उसमें क्रॉप ग्रो की जाती है, जैसे कि मेज़, कसावा। ओके, सुटेबल सिंपल टूल्स का यूज़ करके वहाँ पर इनकी खेती की जाती है। द प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड बाय द कम्युनिटी, पीपल मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर व्हेन द सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी, और वहीं के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उस क्रॉप को फिर कंज्यूम कर लेते हैं और जब वहाँ की जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पर सेम प्रोसेस, पेड़ों की कटाई करते हैं, वहाँ साफ करते हैं, बर्न करते हैं और वहाँ पर खेती शुरू करते हैं। इस तरीके से वो शिफ्ट करते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इंडिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। फॉर एग्जाम्पल ओडिशा में इसको पोडू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एंड इन नॉर्थ ईस्ट इट इज कॉल्ड झूम, सुना होगा आपने झूम कल्टीवेशन, एंड कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरा इन राजस्थान एंड पेंडा इन मध्य प्रदेश। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, वैसे ही वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग नाम से जाना जाता है. फॉर एग्जांपल, मैसूल इन सेंट्रल अफ्रीका, टेरे इन मलगेसे एंड कोमरे इन मैक्सिको, रोका इन ब्राज़ील, मिल्पा एंड कैंगन इन फिलीपींस, चेना in Sri Lanka and Jhum in India. Now next is intensive agriculture. Intensive agriculture क्या होती है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है बहुत बड़े लैंड में बहुत सारे लेबर्स के साथ अच्छी क्वालिटी के सीड यूज़ करके अच्छे से इरिगेशन की जाती है, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, रेगुलर वाटर सप्लाई की जाती है ताकि बहुत सारी जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस हो सके. ठीक है, इसको कहते हैं इंटेंसिव. इंटेंसिव मतलब बहुत सारी, ओके, भारी मात्रा में. इंटेंसिव एग्रीकल्चर. एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस होता है वो लोकली ही कंज्यूम किया जाता है. फॉर एग्जांपल, राइस इज़ द मेन इंटेंसिव क्रॉप ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर. सबसे ज़्यादा जो लोग हैं राइस की खेती करते हैं क्योंकि वहाँ पर गुड क्लाइमेट उन्हें मिलता है, फर्टाइल सॉइल होती है, तो वो ईजिली वन बाय वन अनदर क्रॉप जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं. मोस्टली इन द मॉनसून रीजन ऑफ Southeast and East Asia, rice is the main crop while other include wheat, maize, pulses and oil seeds. Okay? ये आपकी कौन सी क्रॉप्स हैं इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर. नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल एग्रीकल्चर. कमर्शियल एग्रीकल्चर नाम से ही आपको पता लग रहा है, कमर्शियल मीन्स कमर्शियल पर्पज से जो क्रॉप ग्रो की जाती है, यानी मार्केट में सेल करने के लिए. द बेसिक पर्पस ऑफ द कमर्शियल एग्रीकल्चर इज टू सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट, ताकि मार्केट में उस प्रोड्यूस को बेच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें. एंड देयरफॉर द फार्मर सेलेक्ट्स वन पर्टिकुलर सुटेबल क्रॉप विच इज कॉल्ड क्रॉप स्पेशलाइजेशन. इसके लिए क्या करता है, जो फार्मर है एक क्रॉप को चूज करता है. एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ टू मेन फॉर्म. फर्स्ट इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड सेकेंड इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है? दो टाइप की होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जिसमें वो ग्रेन ग्रो करता है, अनाज उगाता है, ओके. एंड सेकेंड इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर जिसमें वो कैश क्रॉप जैसे कि कोकोआ, कॉफ़ी, टी ऐसी प्लांटेशन करता है, ओके. Now, first is commercial grain farming. This is mostly practiced in the middle latitudes. Crops are grown for commercial purpose, mostly in developed countries जैसे Canada, USA, Russia, Ukraine, Argentina, Australia, and in some parts of India. Wheat is the most important crops grown in India. In the USA, there are distinct wheat, corn, and cotton belts. In these areas, per person availability of land is very high. Farms are of huge size, spread over hundreds of hectares. रेंचेस होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम किया जा सकता है, जैसे प्रेरीज इन यूएसए, ओके. वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्रॉप ग्रो की जाती है, बहुत बड़े फार्म होते हैं, हार्डली कुछ ही लेबर होते हैं जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, अदरवाइज जो सारा काम है वो मशीनों के थ्रू किया जाता है. When crops are combined with rearing livestock, it is known as mixed farming. It is common in Europe, Eastern North America, Argentina, Southeast and Australia, New Zealand and South Africa. Raising of cattle for milk products known as dairy farming is also prevalent in these countries. यानी मिल्क प्रोडक्ट के लिए एनिमल्स को, कैटल्स को पालना, दैट इज़ नोन एज डेयरी फार्मिंग. इन कंट्रीज़ में जहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग की जाती है वहाँ पर ये आपका जो है डेयरी फार्मिंग भी की जाती है. नेक्स्ट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है, दिस इज़ अ वेल मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ प्रिवलेंट इन द ट्रॉपिक्स, ओके. जो ट्रॉपिकल एरियाज में प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है. क्रॉप्स जैसे कि रबर, टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन ऑन लार्ज प्लांटेशन. बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं जहाँ पर रबर, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा इनकी खेती की जाती है, ओके. बहुत सारे लेबर यूज़ किए जाते हैं एंड most of the processing is done on the plantation itself. Specialization of a single crop is the key element in this agriculture. जैसे tea in India and Sri Lanka, coffee in Brazil and Colombia, banana in Latin America and
Caribbean islands, cocoa in Ghana, sugarcane in Cuba, etc. are some plantation crops. These plantations were originally developed by the Europeans. Now most of them are owned and managed by the local government or private companies, and the produce is sold in national as well as international market. इतनी सारी क्रॉप ग्रो होती है, अब इसको हम खुद लोकल जो कम्युनिटी है, क्या वो इतनी क्रॉप को कंज्यूम कर पाएगी, इतनी प्लांटेशन को, जैसे कि रबर, टी और कॉफ़ी? नो। तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनली और नेशनली इसको मार्केट में क्या करते हैं, सेल कर देते हैं फार्मर, फिर उसको यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ट्रक फार्मिंग क्या होती है, ऐसी वेजिटेबल्स बिग सिटीज़ में जहाँ पर भेजा जाता है उनको ट्रक के द्वारा, ओके, फॉर लोकल कंजप्शन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरिकल्चर? मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स। इतने सारे फ्लावर की खेती करना कि हम उसको सेल कर सकें नेशनली एंड इंटरनेशनली। दीज आर द टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, लाइक कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि रशिया, चाइना और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसमें क्या की जाती है, कलेक्टिव फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है, दैट एम्प्लाइज फार्मिंग ऑन लार्ज होल्डिंग्स owned by the state and leased to a group of farmers who take all decisions collectively. In Russia, such farms are called kolkhozy and as a communes in China. उसके बाद स्टेट फार्मिंग, इसमें क्या किया जाता है, is done on huge state farms operated by the state and paid workers. In Russia, such farms known as Soki were set up after the World War II. And cooperative farming resembles collective farming in many ways. It is prevalent in democratic countries like India and Western European countries. Now, what do you mean by major crops? Major crops generally it means grown in the world are classified into food crops and commercial crop. Major crop यानी जो ज़्यादा उगाई जाती हैं। फूड क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम रीड करते हैं फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो हम खाते हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, बेवरेजेस एंड ट्यूबर्स, राइस, व्हीट, कॉर्न और मेज एंड मिलेट आर द मेन सीरियल्स, ओके, जिसमें हम इनकी खेती करते हैं। दीज आर द फूड क्रॉप्स। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन से, फर्स्ट फूड क्रॉप इज राइस। Rice has been grown in India for more than 5,000 years. It perhaps originated from India and spread to other parts of the world. राइस जो है सबसे पहले इंडिया में राइस ग्रोन शुरू हुआ था, राइस की खेती शुरू हुई थी ऐसा माना जाता है। और राइस जो है 5,000 ईयर पहले से इंडिया में उगाया जा रहा है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैडी विच इज़ प्रोसेस्ड इन मील्स, bran and husk are used as fodder and also as fuel. Nearly half of the world population, including the whole of East Asia, consume rice as their staple food. बहुत सारे लोगों का इंडिया में राइस क्या है, स्टेपल यानी कि मेन फूड है। And cultivation of rice needs high temperature over 20 डिग्री सेल्सियस and rainfall 100 to 150 सेंटीमीटर। यानी राइस की खेती के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, और रेनफॉल, चावल जो है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए, 100 to 150 सेंटीमीटर। फाइन। उसके अलावा राइस इज़ ग्रोन इन डेल्टाज, रिवर वैलीज एंड कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा अबेंडेंट पानी वहाँ पर अवेलेबल होता है तो वहाँ पर भी राइस ग्रो किया जाता है। उसके अलावा हिल्स में, टेरेस्ड फील्ड में राइस ग्रो किया जाता है। एंड इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर्स एज ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय हैंड्स। पैडी यानी राइस किस पे ग्रो होता है, पैडी पे। तो पैडी को हम क्या करते हैं, उसको पैडी को फिर मील में ले जाते हैं, उसको हस्क और ब्रांड में सेपरेट करते हैं। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है राइस को सेपरेट करने का। मेनली इन इंडिया, चाइना, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार। In India, it is cultivated in West Bengal, Bihar, Assam, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। यहाँ पर चावल की खेती की जाती है।
एंड राइस इज मोस्टली कंज्यूम विद इन द रीजन वेयर दे आर ग्रोन। राइस स्टेपल फूड है, लोगों का मेन फूड है, बहुत सारे लोग राइस ही खाते हैं, तो जिस रीजन में राइस ग्रो होता है मोस्टली वहीं पर वो कंज्यूम कर लिया जाता है। एंड दे आर ग्रोन हाउएवर थाईलैंड एंड म्यांमार नोन एज राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, विच कंट्रीज आर कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्रीज? थाईलैंड एंड म्यांमार। ओके, दीज आर कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका व्हीट। व्हीट जो है एक ऐसा सीरियल है जिसको बहुत सारे लोग खाते हैं। ओके, गेहूं जो है, आप चपाती खाते हो, व्हीट की बनी हुई होती हैं, और ज़्यादातर खेतों में व्हीट की खेती की जाती है। और बहुत सारी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो ज़रूरी होती हैं व्हीट की खेती के लिए। इट इज़ हाउएवर द मेन क्रॉप ऑफ temperate regions as it requires cool weather and a rainfall between 40 to 75 सेंटीमीटर। इसीलिए टेम्परेट रीजन में व्हीट ग्रो किया जाता है। एट द टाइम ऑफ राइपनिंग इट मस्ट हैव क्लियर स्काई। और जब ये पक जाता है गेहूँ, उसको काटने का टाइम आता है, दैट इज हार्वेस्टिंग, तो हमें क्लियर स्काई चाहिए होता है, ड्राई चाहिए होता है, बारिश नहीं होनी चाहिए। ओके, लोम इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर इट्स कल्टिवेशन। और गेहूं की खेती के लिए कौन सी सॉइल की नीड होती है, कौन सी सॉइल बेस्ट होती है? लोम, LOAM। लोम सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ wheat. In North America, wheat varieties are generally classified into 2 types, winter wheat and spring wheat. China, India, France, Russia, Canada, Australia, Germany, Argentina, Turkey, Pakistan, UK, etc. are major wheat producers इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी सबसे ज़्यादा जो व्हीट है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? चाइना में, उसके बाद इंडिया, फ्रांस, डिसेंडिंग ऑर्डर में दीज आर द व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। The USA, Canada, Argentina and Australia are the main exporters of the wheat and account for nearly 75% of the total wheat sold in the international market. Europe is the major buyer of the wheat. यूरोप जो है वो मेजर बायर ऑफ द व्हीट है, यानी यूरोप में गेहूं की खेती नहीं की जाती, यानी सबसे ज़्यादा गेहूं कौन खरीदता है? यूरोप जो कंट्री है वो खरीदती है। फाइन। और जो आपके अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया हैं, यूएसए है, कनाडा है, ये सरप्लस व्हीट ग्रो करते हैं, यानी अपने कंट्री के लिए भी और एक्सपोर्ट करने के लिए भी। इन इंडिया व्हीट इज़ ग्रोन मेनली इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। नेक्स्ट है मेज़। मेज़ को यूएसए में क्या कहते हैं? कॉर्न। ओके, इट इज़ indigenous to the American continent. It was introduced in Europe by Columbus and other explorers. It is second to wheat in terms of area cultivated. उसके बाद wheat के बाद किसकी खेती की जाती है? मेज की खेती की जाती है। Maize is used for both as food grain and as a fodder. The USA is its largest producer and exporter in the international market. सबसे ज़्यादा जहाँ पर मेज़ ग्रो होता है USA. USA is the largest producer and exporter of the maize crop. And China is the second largest producer, followed by Brazil, Mexico, France and Argentina. In India, maize is not a major crop, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर ग्रो की जाती है, जैसे कि कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड बिहार। नेक्स्ट इज मिलेट्स। जो क्रॉप जैसे कि जवार, बाजरा, रागी एंड सोबम आर कॉल्ड मिलेट्स। दे आर यूज्ड एज फोडर एंड फूड सीरियल्स। एज अ फोडर और फूड सीरियल के रूप में मिलेट्स का यूज़ करते हैं। दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। इट इज़ मेनली ग्रोन इन rain-fed areas and less fertile soils. Major producers are India, Nigeria, China and Niger. Millets are used as staple food of poor people as well as fodder for animals. UP, Haryana, Punjab, Karnataka and Maharashtra are the major producers of millets in India. Next है fibers. Fibers क्या होते हैं? Fibers are produced from vegetables, animals, minerals and chemicals. Vegetable fibers are obtained from seeds, stems, leaves and fruit cases, and animal fiber are produced from the silkworms and from animals such as camel, sheep,
गोट्स, याक्स एंड सो ऑन। क्या होते हैं फाइबर, जिनसे क्या बनती है, क्लोथिंग बनती है। ओके जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूम, ऐसे नेचुरल सेलुलोज भी मिलता है, हमें क्रॉप ग्रो की जाती है। एंड फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फाइबर की, दैट इज कॉटन। कॉटन इज ग्रोन to make clothes. It classified on the basis of the length of the fiber as short staple, medium staple and long staple cotton. The long staple cotton produces fine and strong quality of cloth. Okay, तो कॉटन जो है उसकी क्रॉप के लिए, उसकी एग्रीकल्चर के लिए 30 to 40 डिग्री क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए होता है, और 60 to 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल चाहिए होती है। कौन सी सॉइल बेस्ट होती है, एल्यूवियल एंड ब्लैक सॉइल बेस्ट होती है कॉटन प्लांट्स ग्रो करने के लिए। इट नीड्स फ्रोस्ट फ्री सनी डेज एंड यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर। लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर्स जो हैं दैट आर चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्की, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। इन इंडिया महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, दीज आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज जूट। Jute fiber is obtained from the bark of the jute plant stem. It is native plant of गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नेटिव प्लांट है, यहाँ से जूट की खेती शुरू हुई थी। एंड इट इज़ वाइडली प्रेफर्ड टू मेक गनी बैग्स बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट। क्या बनाए जाते हैं, बैग, जूट के बैग आपने देखे होंगे, वो बनाए जाते हैं। It grows best in well-drained sandy loam and require warm and humid climate. कौन सी सॉइल में ग्रो होती है, लोम सॉइल में, और कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, 150 सेंटीमीटर पर ईयर। फाइन। It is a major fiber crop grown. Before turning the page, we have to know some important facts like we are familiar with one type of maize variety only, that is the yellow ones. Okay, लेकिन जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो अलग अलग मेज की वेराइटीज़ कल्टिवेट करते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, पिंक एंड ब्लैक, और उसका वो यूज़ करते हैं बैंड बनाने में, स्ट्रिप बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो आप सोच सकते हो मेज़ का यूज़ वो किस किस तरीके से करते हैं। सेकेंड इज इंडिया जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द नेटिव प्लेस ऑफ कॉटन। जो हमारे वेदास हैं उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो कॉटन की कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे पता लगता है कि कॉटन जो है वो इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे रिमेन्स मिले हैं जिससे हमें पता लगता है कि कॉटन उस टाइम भी ग्रो किया जाता था, कल्टिवेट किया जाता था, बिफोर 5000 ईयर्स अगो। उसके अलावा जूट जो है आपका इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में जैसे कि आपके कुछ स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल हैं, असम हैं, एंड सम अदर माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट आर बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, बांग्लादेश एंड सो ऑन। ओके, तो जूट फेसेस अ टफ कंपटीशन फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक गनी बैग्स। हेम्प, फ्लैक्स, हेनिक्विन, एबेका, सिसल एटसेट्रा आर द मेजर सब्सिट्यूट ऑफ जूट। इसीलिए जूट जो है ये कम्पिटिटिव क्रॉप है। हो सकता है जूट के जो बैग हैं वो इजीली सेल भी हो जाएं, हो सकते हैं कि उसके जो कंपटीशन में दूसरी जो चीज़ें हैं वो इंट्रोड्यूस हों। ओके, उसके अलावा टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ आर पॉपुलर ड्रिंक्स। इनसे क्या बनते हैं, बेवरेजेस बनते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, बेवरेजेस क्रॉप्स भी कहते हैं, और उसके अलावा कैश क्रॉप भी कहते हैं। कैश क्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको किस लिए ग्रो करता है फार्मर, सेल करने के लिए, ताकि उसे कैश मिल सके, इसीलिए इनको कैश क्रॉप भी कहते हैं। नाउ हम डिटेल में पढ़ते हैं बेवरेजेस क्रॉप। फर्स्ट इज टी। टी, चाय, आपको पता होगा घर में सब लोग टी पीते हैं। टी इज मेड फ्रॉम द फ्रेश यंग लीव्स ऑफ द टी प्लांट। The crop has many varieties. China produces small leaves and Assam large leaves tea plants. अलग अलग टाइप की टी लीव्स होती हैं, जैसे कि चाइना में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं चाय की, आसाम में लार्ज लीव टी प्लांट्स होते हैं। Now here is a brief history of tea. Tea. Chinese were the earliest tea drinkers in the world. सबसे पहले चाय कौन पीता था, चाइनीज। ओके, It was also considered a medicinal drink and the tea gardens were prohibited for outsiders in China.
The colonial British first discovered the Assam tea in 1829 in the forest of northeast India. चाइना में अकेला चाइना जो है वो सबसे पहला टी प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो टी के जो बागान होते थे, टी की जो प्लांटेशन होती थी, वहाँ पर आउटसाइडर को एंटर भी नहीं किया जाता था। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने असम में टी को इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पर प्लांटेशन की, टी गार्डन्स बनाए। असम जो है वहाँ से इंडिया में शुरुआत हुई थी टी प्लांटेशन की। उसके बाद श्रीलंका में, और धीरे धीरे टी इस तरीके से सबकी पसंदीदा बनती गई। टी के लिए क्या चाहिए होता है? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है। Climatic requirement restrict the commercial cultivation of tea to rainy tropical and humid subtropical region. The crop also needs well-drained alluvial soil. इसीलिए हिली एरियाज में कुछ ही जगह पर टी की खेती की जाती है। Apart from India, other major tea producers are, for example, Sri Lanka, China, Japan, Indonesia. These 4 countries account for more than 3/4 of the world production. In India, tea is produced in Assam, West Bengal, Kerala and Tamil Nadu. Assam alone accounts for half of the country's production. यानी सबसे ज़्यादा जो टी प्रोड्यूस कहाँ होती है? आपके असम में, इंडिया में। ओके, नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। रॉबर्ट ब्रूस डिस्कवर द टी बुश इन अपर असम इन 1823, जिसने टी बुश को इंट्रोड्यूस किया था। सेकेंड आपकी बेवरेजेस क्रॉप है कॉफ़ी। 1/3 of the world population drinks coffee. The second largest beverages after tea. First is tea, second is coffee, जो लोग पीना पसंद करते हैं। Its stimulating effect has made it popular all over the world. Coffee plants are cultivated for seeds and beans, which are roasted, ground and sold for brewing coffee. There are 2 types of coffee plants: Coffea arabica, mocha, and Coffea robusta. Okay. And coffee plant needs warm climate and moderate rainfall. Strong sunshine या snowfall दोनों ही क्या होती हैं कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए? हार्मफुल होती हैं while growing. Coffee plant needs rainfall of 100 to 150 centimeter and temperatures between 15 to 25 degrees Celsius. Irrigation is required when the annual rainfall is less than 100 centimeter. अगर annual rainfall वहाँ के एरिया में 100 सेंटीमीटर से कम है तो irrigation की जाती है। Important coffee producers are Brazil, Colombia, Vietnam, Indonesia, and Cote d'Ivoire, Ivory Coast, Mexico, India, Ethiopia, and so on. These are the largest coffee producer. इंडिया में जो आपकी कॉफ़ी है दैट इज़ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। उसके अलावा ईस्टर्न शेल्टर्ड स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ओके, दिस इज द मैप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। कौन सी कॉन्टिनेंट में, कौन सी कंट्री में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, ये आपको कीवर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। राइस कहाँ ग्रो होता है? व्हीट, मेज, टी, कॉफी, मिलेट, कोकोआ एंड ग्राउंडनट। यू हैव टू रीड दिस मैप। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग जो है ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे मेथड, ऐसे आइडिया को सोचने लगी है कि कैसे जो फूड रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन उसको इक्वल टू किया जाए। ओके, कैसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए। Human learns now better and improved ways of growing crops. By the 18th and 19th centuries, improved farming methods, advances in livestock breeding and invention of different farm equipments brought remarkable changes in the development of agriculture in the world. There have been a progressive growth in agriculture during the 20th century as well, with development of high-yielding varieties seeds, that is HYV seeds, and application of fertilizers, pesticides, insecticides, and weedicides. Agriculture production has grown manifold worldwide. Now, genetically modified crops to get higher yield
with less problems of pests and weeds have also been developed by some countries। कि कैसे जो वीड है, यानी पहले क्या होता था, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग ने ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर ली हैं, ऐसे केमिकल्स इन्वेंट कर लिए हैं जिससे जो हमारी क्रॉप है उसको वीड और पेस्ट के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और हमारे पास अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में हमारे पास क्रॉप ग्रो हो सके। Unlike developing countries, most of the farm work in developed countries like USA, कैनेडा, रशिया, यहाँ पर जो खेती है, एग्रीकल्चर है, वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ की जाती है। बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते हैं, फार्म्स होते हैं। In the USA, only 3% of population depend on agriculture for their livelihood, because जितना भी एग्रीकल्चर का काम होता है वो कैसे किया जाता है, बाय मशीन। तो मशीन ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 2 और 3 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए only 3% of the population depend on agriculture for their livelihood. Fine. Now there is a case study about a farm in the USA. यूएसए में जो नॉर्मली एक एवरेज फार्म की अगर हम बात करें वो 250 हेक्टेयर का होता है। जो फार्मर्स हैं वो उसी फार्म में रहते हैं, ओके। उनके पास बहुत बड़ा ये फार्म होता है, वहाँ पर वो खेती करते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ग्रो होती है। उसके अलावा फार्मर के पास इतना पैसा होता है, इतनी सारी मशीन्स होती हैं कि जो वो सॉइल है और वाटर रिसोर्सेज है वो इजीली अवेलेबल करा सके, ओके। जो सॉइल है उसकी टेस्टिंग की जाती है लेबोरेटरीज़ में, उसके बाद अकॉर्डिंगली पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं और वही वो फार्म जो क्रॉप है वो सजेस्ट की जाती है कि यहाँ पर कौन सी क्रॉप जो है वो अच्छी ग्रो हो सकती है। पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करना सिखाया जाता है। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, मॉडर्न मशीन्स होते हैं, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स, जो कि 2 या 3 मैन पावर से पूरा जो फार्म है वो कल्टीवेट इजीली हो जाता है। यहाँ पर बहुत बड़े जो ग्रेन स्टोरेज टैंक भी होते हैं जिसको क्या कहते हैं, सिलोस, ओके। उसी फार्म में बड़े बड़े टैंक होते हैं ग्रेन स्टोर करने के लिए जिसको सिलोस कहा जाता है। उसके बाद वहाँ से सिलोस से ये जो ग्रेन है मार्केट एजेंसी में भेज दिया जाता है। फार्मर जो होते हैं यूएसए के वो एक बिजनेसमैन की तरह रहते हैं, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह। द सक्सेसफुल फार्मर इज एन एक्सपर्ट इन फार्मिंग, ही मेंटेन्स प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ फार्म्स एक्सपेंडिचर एंड इनकम। नाउ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस तरीके से आगे डेवलप हो रही है। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर नियरली 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे यूएसए में आपने पढ़ा पॉपुलेशन का सिर्फ 3% ही जो है वो एग्रीकल्चर पर लोग डिपेंड होते हैं, लेकिन इंडिया में 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली या फिर हम इनडायरेक्टली की बात करें। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड which uses maximum amount of geographical area available for cultivation। इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। At the time of independence, India faced the problem of food shortage। इंडिपेंडेंस के टाइम पर फेमाइन आ गई थी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़। बहुत सारे जो लोग थे वो इतनी क्रॉप इनफ ग्रो नहीं कर पा रहे थे कि वो अपनी फैमिली को भी सर्वाइव कर सके। ऊपर से ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिगो डाई करने के लिए क्या करते थे, प्रेशर करते थे फार्मर्स को। इसके कारण जो वहाँ की जो खेत थे, वहाँ के जो फार्म थे, वहाँ क्या हो गए थे, वो बैरन हो गए थे, इनफर्टाइल हो गए थे। तो इसी कारण उस टाइम पर क्या हुआ था, फेमाइन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सके। एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया ऑन नॉट मोर देन 1 hectare ऑफ द लैंड। On an average, a farmer works on about 1.5 hectare. Even this land is fragmented over the years. गवर्नमेंट ने एनकरेज किया, चकबंदी की,
दैट इज़ द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स टू प्रमोट द यूज़ ऑफ फार्म मशीन्स। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लैंड रिफॉर्म प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं। ज़मींदारी सिस्टम जो पहले था उसको ख़त्म किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया लैंड का, ताकि जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनको भी लैंड मिल सके, एंड मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया कंट्री में। गवर्नमेंट जो है हमारी बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ किसानों को प्रोवाइड की हैं, जैसे कि इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सच एज ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, fertilizers, pesticides and electricity were made available to farmers at low prices. उसके अलावा फाइनेंसिंग है, ऐसे बैंक खोले गए हैं जो किसानों को, फार्मर्स को बहुत ही कम रेट में फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने खेतों में नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें, न्यू फर्टिलाइज़र का, न्यू सीड्स का यूज़ कर सकें और अपनी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सकें। उसके अलावा इंडिया इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सीरियल्स, ऑयल सीड्स, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। द कंट्री हैज़ मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स growing of vegetable and fruit farming. 1/10 of the fruits produced in the world are exported from India, and however floriculture, that is the flower cultivation on a commercial basis, is picking up slowly. It has wide potential for future. फ्लावर ग्रोइंग का भी जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे इंडिया में क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, कि इंडिया से जो फ्लावर है उसकी खेती की जाती है और उसको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड ऑल्सो। नाउ हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। Dr. Norman Borlaug was the creator of the concept of green revolution. However, the term was first used by William Gadd in 1968. It was the beginning of the development of biotechnology. This technology was adopted in India during the Fourth Plan 1969 to 74 as new agriculture strategy. It brought about tremendous increase in wheat production. Later, it was extended to other food crops also. Green revolution यानी कि जब ध्यान दिया गया कि कैसे हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। पहले इसका ध्यान किस पे, कौन सी क्रॉप पे दिया गया, व्हीट क्रॉप पे, ओके, फूड क्रॉप पर। उसके बाद धीरे धीरे दूसरी जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया। इट हैज़ assured self-sufficiency in food production. However, regional imbalance in production, soil pollution, depletion and salination are the negative aspects of the green revolutions. Now here is given a case study of farm in India. इंडिया में जो एक फार्म होता है वो 1.5 हेक्टेयर का होता है। दिस पर्टिकुलर फार्म इज लोकेटेड इन द गंगेटिक प्लेन and this farm has a well in one of its corners. The owner of the farm generally resides in the village only. He uses a pump set to irrigate his fields. और entire land जो है वो अलग अलग छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड की गई है। Different crops are grown in these plot. अलग अलग प्लॉट पर अलग अलग क्रॉप ग्रो की जाती है। Rice is the main crop which is growing during rainy season June to October. As the soil is very fertile, another crop is also taken from the field. Wheat is grown during winter, November to April, and the farmer also has a few livestock like cows, buffaloes, bulls, a few hens, roosters, and chicks. He sells milk in the cooperative store located in a town close by. In order to perform various agriculture activities, he generally hires machines such as tractor, thresher. क्या करता है वो, नियर बाय टाउन से ये मशीनें हायर करता है और बाकी के कामों के लिए या तो अपने गांव के ही कुछ एग्रीकल्चर लेबर को हायर किया जाता है या फिर पास के गांव से लेबर्स को बुलाया जाता है। All his family members help him in various activities. उसके सारे फैमिली मेम्बर उसके साथ खेतों में काम करते हैं, ओके। और उसको फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड परचेज करने के लिए एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत होती है। वो क्या करता है, मनी लैंडर से मनी उधार लेता है या फिर ऐसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक बने हुए हैं जो उसे सस्ते इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या करता है, जो सारी जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होती है उसको मंडी
मंडी में जाके वो सेल करता है, क्योंकि मोस्टली फार्मर्स के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो उसको स्टोर कर सकें, तो उसे ना चाहते हुए भी मिडल मैन को वो क्या करनी पड़ती है, प्रोड्यूस सेल करनी पड़ती है। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स डू नॉट हैव सफिशिएंट लिटरेसी एंड कैपिटल टू अंडरटेक मॉडर्न फार्मिंग। बहुत सारे जो किसान हैं वो लोग क्या हैं, अनएडुकेटेड हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतनी टेक्निक्स उसको नहीं पता कि वो मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकें। ओके, नाउ हियर इज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. Agriculture is the art and practice of growing crops. It also includes livestock raising, forestry, fishing, sericulture and poultry, etc. It is the oldest occupation of mass for subsistence. Agriculture first started in the river valley and later expanded to drier and colder regions. Relief, soil and climate are the main factors affecting agriculture. Each crop requires definite geographical conditions. Subsistence agriculture is meant for survival only. It is of three types: nomadic, shifting and intensive. Nomadic herding involves constant move of herders and their flocks for fodder. Shifting agriculture involves clearing of forest by cutting and burning, raising of crops for 2 or 3 years and shift to another area when the soil fertility declines. Intensive agriculture is done on small piece of lands with the help of more inputs and labor. Commercial agriculture is done for commercial purposes. It includes grain farming, dairy farming and mixed farming. Plantation agriculture is a type of commercial agriculture in which a single crop is raised on large farms in an organized manner. Horticulture, truck farming and floriculture are other forms of commercial agriculture. Wheat, rice, maize and millets are the chief food crops. Tea, coffee and cocoa are beverages and cotton and jute are fiber crops. Indian agriculture is mainly subsistence type. It is characterized by low productivity. After independence, government took several measures to improve agriculture. Green Revolution has caused increase in cereal production. Agriculture in USA is highly mechanized. I hope students you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.